Welcome back again, students. In this lecture, we'll start Venn diagram and we'll see what's the union of two matrices. So we'll start the topic Venn diagram. But before going to start the Venn diagram, what is a Venn diagram? I would like to define what's a universal set. Universal set. A universal set is either it is denoted by U or E. But what's a universal set? U set, I'm adding a set U is said to be universal set if it contains all the sets under a particular consideration. Under a particular consideration. मतलब हम कुछ टॉपिक पर हम कुछ पर्टिकुलर कंसिडरेशन कुछ सेट्स ले रखे हैं, तो ऐसा यू को यूनिवर्सल सेट कर देंगे अगर वो सारे सेट्स को रखा होगा, मींस ऑल दैट सेट्स आर सबसेट ऑफ यू इज द यूनिवर्सल सेट, लाइक यूनिवर्स है। बाकी हम सब जो बाकी सब मंगल यूनिवर्स जो भी आए, वी आर ऑल सबसेट्स ऑफ द यूनिवर्स. So U is the universal set if it contains all the sets under a particular consideration. Now, what's a Venn diagram? For example, for universal set, example, suppose we are taking A is equal to 1, 2, 3, 4, and B is equal to 2, 4, 6, 8, and C is nothing but 3, 5, 7, 9. So for these three sets, we can take universal set as 1, 2, 3, 4, 5, 6, up to 9, or you can just also take the 10. So all these sets are subset of A. So I can say that U is the universal set for these three sets. Now it's clear. Now we'll see what's a Venn diagram. Venn diagram का मतलब क्या होता है? चलो हम देखते हैं. अच्छा, जॉन वेन बोल के एक मैथमेटिशियन थे जिन्होंने ग्राफिकल अप्रोच ऑफ सेट थ्योरी दिया, एंड जो कि आगे जाके सबसे तगड़ी चीज होगी हम लोग को सेट के नंबर्स करने के लिए. तो उन्होंने क्या करा, वेन डायग्राम इज द ग्राफिकल representation of sets बोला गया, in which कैसा representation है, in which the universal set is represented by a rectangular shape and all other subsets are represented by closed curve, closed region लिख दे रहा हूँ, closed shape लिख दे रहा हूँ. It may be circle, it may be triangle, it may be small rectangle, triangle, जो भी ले सकते हो. Closed circle shape लेना है. For example, at we have A is equal to 1, 2, 3, 4, 5, and B is nothing but we have that 2, 4, 6, 8, 10. And universal set is that 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So what's the universal set we have? So this is universal set. So what's the Venn diagram? That's मैंने लिखा Venn diagram में. The graphical representation of sets in this universal set is represented by rectangular shape. सबसे बड़ा rectangular set मैंने ले लिया. So this is the universal set, and all the other subsets are represented by closed shape. या circle भी ले रहता है. तो मैं एक circle draw करा. This one is A and B पे. देखो इस जगह पे कुछ common element है 2, 4,
we have that common in this one. So again we have a sets B such that, अब देखो इन दोनों में जो कॉमन है 2 and 4 कॉमन है वो ये बीच पे रह जाएंगे क्योंकि 2 4 ए के पार्ट में भी है और 2 4 बी के पार्ट में भी है. Now what the rest one? 1 2 3 5 and in the B set 2 4 6 8 10 और बाहर क्या बच गया 1 2 3 4 5 6 7 7 बाहर है 9 बाहर है. So this one is that this Venn diagram, graphical representation of set. So we have taken U is the universal set, is represented by rectangular shape, and all other subsets are represented by closed circles and closed triangle. So first of all, I have just taken the what's the common element. So I have written the common element in common region. दोनों के जो common region है उसके बीच में लिखा गया, and rest element को मैंने सजा दिया, और जो elements बाहर मैंने उसको बाहर ले दिया. So this is the graphical representation of the set theory, and I can say that this is the Venn diagram. Moving forward, the most important topic is that operations on sets. कुछ operations सीखेंगे हम एक पे एक. The first and interesting operation is that union of two matrices. Union of two sets. I'm really sorry. Union of two sets. So what do you mean by union? तुमने पता सुना होगा कभी यूनियन पार्टी करते हैं, चलो आज ऐसा है ये. So what is it union? Suppose we have two classrooms. In the first classroom we have math students. In the second classroom some physics students are there. मैंने बोला चलो पार्टी करते हैं, तो मैंने यूनियन पार्टी रखा उन दोनों. अब क्या होगा, एक नए जगह पे क्या हॉल पे हम लोग हैं, हॉल पे क्या हुआ, अब वहां पर कौन कौन स्टूडेंट, मैथ स्टूडेंट भी है, फिजिक्स स्टूडेंट भी है. अब उस जगह पे दोनों मीट है. Is that correct? That hall is nothing but the union of math student and physics student. वही बात यहाँ पर भी union होगा. The union of two sets, union of two sets, तो two sets को आप करो, फिर three sets भी हो सकते हैं, 4 भी से हो सकते हैं. The union of two sets A and B is the collection. कैसा collection है ये? Collection of elements which are either in A or in B. कैसा लिखा गया? The collection of all elements which either are in A or in B. मतलब suppose अगर symbol यूज करें तो symbol so what's that A union B? It is denoted by A union B is the collection of all X such that X is in either A or X is in either B. क्या बात चल रहा है यहाँ पे देखते हैं union of two sets. So for example, अब एक example लो मैं यहाँ पर. Suppose we have that 1 2 3 4 we have, and we have that B is equal to 2 1 5 6. Set A union B दोनों को मिलाना है मुझे. 1 2 3 4 5 6. So what's that A union B? 1 2 3 4 5 6. देखो मैंने मिला दिया. जो एलिमेंट रिपीट होगा अब उसको तो लिख नहीं सकते, इसलिए 1 2 जैसे रिपीट है यहाँ पर. So just I written one time. तो क्या बोला गया? The union of two students. देखो union of two sets is the collection of all elements which belongs to either A or in B. जस्ट मिलाने जैसा ना काम है, जहाँ पर डबल रिपीट हो गया उसको एक बार लिखना है. Is that clear? Okay. एक बात यहाँ पर सीखते हैं यहाँ पर अभी. अगर वेन डायग्राम पे हम लोग देखें, उसके वेन डायग्राम पे so this is my universal set. This one is set A and this one is set B. So what's that union of A and B? So if we have this is set A, A के elements कुछ ऐसे हैं, okay, and B के element कुछ इधर थे, तो दोनों को मिलाने के बाद जो रेड पार्ट का सेटेड वाला पाया, that's reason is called as A union B.
So A union B is the collection of all elements which belongs to A or B. अब जैसे मैंने तुमको बताया था, मेरे पास मैथ क्लास कुछ बच्चे हैं और फिजिक्स क्लास कुछ बच्चे थे। ये हो सकता है कुछ बच्चे ऐसे फिजिक्स के होंगे जो पक्का मैथ पढ़ते होंगे, यहाँ पर होंगे कुछ ना कुछ। अब मैंने जब हॉल पे उन लोगों को मिलाया, एक बड़े से हॉल पे मिला दिया, सब बच्चे यहाँ बैठे हैं। अब क्या हुआ, मैंने एक बच्चे को यहाँ से पिक करा, ठीक है, और मैंने बोला कि X बिलोंग्स टू A यूनियन B है। तब यहाँ पर मैं कमेंट क्या कर सकता हूँ, मैंने एक बच्चे को यहाँ से पकड़ा और बोला कि बच्चा A यूनियन B पे बिलोंग करता है, हॉल पे बिलोंग कर रहा है। तब मेरा कमेंट क्या आएगा यहाँ पर कि ये बंदा आइदर मैथ क्लास का होगा या फिर फिजिक्स क्लास का होगा या फिर दोनों में पढ़ता होगा। ये भी हो सकता है ना। यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं, X बिलोंग्स टू A और X बिलोंग्स टू B। नाउ बच्चों याद सुनना अच्छे से, X बिलोंग्स टू A और X बिलोंग्स टू B का मतलब क्या है। X आइदर A पे है या फिर B पे है या फिर दोनों पे भी हो सकता है। तो और इंक्लूसिवली एक ऐसा कंडीशन भी उसमें छुपा हुआ है जहां पर आइदर A पे है या फिर B पे है या फिर दोनों पे हो सकता है। इज इट क्लियर? तो अब X बिलोंग्स अगर A में B बोलूंगा तो X बिलोंग्स टू A भी हो सकता है या फिर B का भी हो सकता है। आइदर मैथ का क्लास का होगा या फिर फिजिक्स क्लास का या फिर दोनों पे बैठ के पढ़ता होगा। अब एक बात मुझे बताना इस जगह पे इंपॉर्टेंट वाली बात, अगर मैंने लिखा X A यूनियन B पे नहीं है, मतलब इस पार्टी पे नहीं है, तो बाहर में कोई बैठा होगा बंदा, तो मैं बोल सकता हूँ कि X A यूनियन B पे नहीं है। इसका मतलब क्या होगा, पक्का X A का भी नहीं, M का भी नहीं होगा एंड P का भी नहीं होगा। पक्का मैथ क्लास में बिलोंग नहीं करता होगा, फिजिक्स क्लास में बिलोंग नहीं करता। अगर किसी एक क्लास में बिलोंग करता तो पक्का इसके अंदर होता। तो मैं यहाँ पर क्या कमेंट करूंगा, X does not belongs to A, मतलब A पे भी नहीं है एंड X B पे भी नहीं है। ये इंपॉर्टेंट लाइन होगा हम लोगों के आगे के लिए। X अगर A में B पे नहीं है तो मैं पक्का बोलूंगा कि X A पे भी नहीं है एंड X B पे भी नहीं। Is that clear? Now कुछ बातें, कुछ प्रॉपर्टीज सीखते हैं हम लोग इस जगह पे। आई होप यूनियन का डेफिनेशन समझ आ गया होगा। यूनियन इस वाले पार्ट को सब जगह पे कॉमन, दैट पार्ट का सब्जेक्ट को होता है यूनियन। now कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं यहाँ पर। प्रॉपर्टीज क्या है, पहला प्रॉपर्टी है A यूनियन B या फिर B यूनियन A, एक ही बात है। A को B के साथ मिलाओ या फिर B को A के साथ मिलाओ, सेम बात है, कोई बड़ा अलग अलग बात नहीं है। अच्छा मुझे कौन बता पाएगा A यूनियन A क्या होगा? अगर मैं A को A के साथ मिलाऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा, फिर से वही सेट मिलेगा कि नहीं? A को अगर A के साथ मिलाया तो फिर से यही सेट मिलेगा। नाउ द इंटरेस्टिंग बात, इफ A इज सबसेट ऑफ B है देन A यूनियन B क्या होगा? ये कौन मुझे बता पाएगा? अगर A B के अंदर है देन व्हाट इज A यूनियन B? जैसे कि अगर वेन डायग्राम पे आपको दिखना हो, ये B है और B के अंदर A है, तो ये अंदर बैठा। अब A और B को मिलाने से क्या होगा, टोटल B सेट होगा कि नहीं चेक करो और बताओ। अरे A है ये चीज और उसी के साथ B को मिलाया तो A यूनियन B क्या होगा, फिर से कंप्लीट B होगा कि नहीं? नहीं समझ आया? ये A है और B के साथ मिलाया मैंने तो वी गेट A यूनियन B। फॉर एग्जांपल भी लिख सकते हैं लाइक A इज इक्वल टू AB और मैंने ले लिया B इज इक्वल टू ABC। अब A is subset of B है, then what's that A union B? Here we can have A, B, C, and that is nothing but our B set. Similarly, अगर B subset of A होगा, then A union B यहाँ पर क्या होगा? That nothing but A होगा। Now, Venn diagram देख के मुझे कौन एक चीज बता पाएगा? What is the connection between A and A union B? B and A union B, दोनों के इसमें कनेक्शन क्या है? चलो Venn diagram पे देखते हैं हम लोग। ये A सेट है और ये B सेट है। अब देखो A यूनियन B इज द टोटल रीजन। ये A पार्ट देखो अच्छे से देखना, यहाँ पर A पार्ट क्या A यूनियन B में नहीं होगा? ये A पार्ट पक्का A यूनियन B के अंदर भी रहेगा, क्योंकि ये दिस इज B के साथ ऐड हो जाएगा। आई कैन से दैट A is subset of A union B and also B subset of A union B होगा। इस एग्जांपल में देख सकते हो
ए इसके अंदर है कि नहीं, ए यूनियन बी के अंदर, बी भी इसके अंदर है कि नहीं, तो ए सबसेट ऑफ ए यूनियन बी एंड बी सबसेट ऑफ ए यूनियन बी होगा। नाउ द नेक्स्ट, अच्छा फाई यूनियन ए क्या होगा? एम्प्टी सेट के साथ अगर मैं ए को मिलाऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा? फाई में कुछ भी नहीं है, एम्प्टी सेट इज एम्प्टी सेट, कुछ भी नहीं है, ए मिलाने से क्या होगा? फिर से ए होगा कि नहीं? द लास्ट वन थिंग इज दैट अगर मैं वही बात देखूं, यूनिवर्सल सेट के साथ अगर मैं ए को मिलाऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा? यूनिवर्सल सेट सबसे बड़ा सेट होता है जो ए को भी रखा होगा। अपने यूनिवर्स के साथ फिर से अर्थ को मिला दूंगा तो क्या होगा? यूनिवर्सल सेट ही होगा कि? तो दिस इज द प्रॉपर्टीज ऑफ यूनिवर्सल सेट। नाउ एक इंपॉर्टेंट बात और बताना है मुझे, यूनियन एंड द वर्ड और का कनेक्शन क्या है? तो कितना जबरदस्त कनेक्शन होगा एंड यूनियन एंड द वर्ड और, क्योंकि ए यूनियन बी का मतलब है ए और बी, कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स इन ए और बी। एक चीज मैं यहाँ बताऊंगा, एक एग्जांपल लेना चाहूंगा। सपोज मेरे पास कुछ सिंगर्स हैं जो गाना गाते हैं एक सेट पे, यूनियन, कुछ मेरे पास इंस्ट्रूमेंट है जो बजाते हैं हम लोग। तो मैं दोनों को यूनियन कर दूं तो क्या मिलेगा? इज द पीपल हु सिंग्स और प्ले इंस्ट्रूमेंट, बोलूंगा कि नहीं? व्हाट इज दैट यूनियन? मेरे पास कुछ सिंगर्स है कुछ इंस्ट्रूमेंट है, तो मेरे पास कलेक्शन मिला दिया मैंने जो इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं। तो क्या नहीं, अब जो मेरे पास नया कलेक्शन आया है पीपल हु सिंग्स और प्ले इंस्ट्रूमेंट बोला जाएगा। एग्जांपल देते हैं। Suppose we have that set of vowels, we have unions, the letters of the word are made. कुछ भी लिख दो चीज। So what's the union? Letters that are vowels, कैसे लेटर्स होंगे? that are vowels हो सकते हैं, और in the word are made, लिख सकते हो सिंपल अगर लैंग्वेज में, in the word are made। तो अगर मेरे पास एक सेट पे वॉवल्स है और एक सेट पे लेटर्स ऑफ द वर्ड ए आर एन डी, तो यूनियन क्या होगा? लेटर्स दैट आर वॉवल्स और इन द वर्ड और। सो यूनियन का मतलब पक्का पक्का और होगा। और एक कनेक्शन, यूनियन एंड द वर्ड एटलीस्ट। चलो देखते हैं क्या होता है इसका। एक्चुअली में एटलीस्ट जो वर्ड है क्या देता है? टेल्स अबाउट द यूनियन ऑफ टू सेट्स। ये हमको उसके बारे में आइडिया देता है। जहाँ पर एटलीस्ट हुआ है वहां पर पक्का यूनियन का साइन होगा। चलो इसको क्लियर करने के लिए एग्जांपल देते हैं। सपोज वी हैव a set of students who plays cricket and B is the student who plays football and the C is the set of student who plays hockey। so अगर मैंने A यूनियन B निकाला, मैं इसको बोलूंगा it is the collection who play at least cricket और फुटबॉल, क्रिकेट एंड फुटबॉल, एटलीस्ट क्रिकेट एंड फुटबॉल। ऐसे ऐसे बच्चे जो क्रिकेट या एटलीस्ट आइदर क्रिकेट और फुटबॉल, मतलब ये ज्यादा हो गया, जो एटलीस्ट क्रिकेट एंड फुटबॉल। अगर मैं वही जगह पे ए यूनियन बी यूनियन सी लगा दूं, इट इज अ कलेक्शन ऑफ who play at least cricket and football and hockey। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो who plays at least one of game, at least one of game, ऐसा भी बोल सकते हैं। तो आइदर क्रिकेट खेलता हो या फिर फुटबॉल खेलता हो या फिर हॉकी खेलता हो। तो ए यूनियन बी। So union is nothing but or and union is nothing but the at least। जहाँ at least लगेगा वहाँ पर हम वो यूज करेंगे यूनियन का। तो
like the video. In the next lectures हम देखेंगे what is the intersection and difference of two sets. Thank you for watching the videos.